Okay, guys. So we are analyzing syllabus of ESIC Deputy Director. So what we are doing, we are going keyword by keyword to understand what we should be studying under each keyword of the syllabus. So today we'll do a very interesting topic, which is right to information. Right to information. Okay. And so who we are, I am from Human Titus, and we are uniquely positioned to assist you for UPSC ESIC exam. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? Because on the one hand we have expertise of assisting you for UPSC recruitment exams like ALC, APFC, EPFO. On the other hand, we are very well known market leaders of management subject like management, commerce, labor law, and so on. So this creates a unique synergy on which with which we can assist you for UPSC ESIC exam. Okay. So so how we do that? So it's a 4-step plan. In step 1, we teach you in live classes for around 4 months. In step 2, we make you go through printed booklets to cover entire syllabus. In step 3, you get an online question bank of around 10,000 questions. And in step 4, we make you go through full-length mock test papers. And if you go with these 4 things with us, you are ready for UPSC ESIC exam. And this 4-step strategy has worked pretty well in earlier exams also. 4-step strategy, where, for example, in UPSC ALC exam, Assistant Labor Commissioner, which was done in November 2017. So most of paper was from our content only. Even recently held UPSC EPFO, again we adopted this 4-step strategy, which happened in September 2021. Again, our students did very well, and we are pretty hopeful that the same plan will work for ESIC exam as well, and you'll be able to do well. By the way, with this 4-step plan, you need not look at any other book, you need not touch even any previous year paper, nothing else. Even current affairs are also our responsibility. So you can completely depend upon us. If you want to understand how we go with this 4-step plan, go to our website. You can go on the ESIC page. You can also connect with us through email or phone. Also, we have given a link in the description below. Through that link, you can connect with our team directly through WhatsApp. Okay, so let's get started. The agenda for today is, under the topic RTI, Right to Information Act, what we should be studying. RTI Act, what is the boundary of the syllabus? So guys, it's pretty simple. First thing is that I think you will get around 2 to 3 questions from this topic. This is our guess. 2 to 3 questions from RTI Act. Second thing, it is so easy. अगर इसका सवाल गलत हो गया तो तुम लोगों ने तैयारी नहीं किया है. इसके 1, 2, 3, 5 जितने भी सवाल आते हैं, हर एक सवाल ठीक होना चाहिए. दिस इज सो प्रेडिक्टेबल. इससे बाहर कुछ नहीं है. एनीवे, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. कहीं आप किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, PSU में हो, यू आर समवट फैमिलियर विद RTI एक्ट. तो ये तो आपके 3, 4, 5 नंबर तो खरे हैं. इसका आपको कहीं नहीं लाना. अब वो खरे नंबर करने के लिए आपको 4 चीजें करनी है, विच विल टेल यू pretty straightforward. Number 1, RTI Act 2005 पूरा पढ़ लीजिए. RTI Act of Government of India. Some states also have adopted RTI Act. कुछ उनमें वेरिएशन भी होता है. जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में RTI में जाते हो तो यू पे ₹10 एज फीस. अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में RTI करोगे, आपको ₹50 देना है. डू नॉट वरी अबाउट स्टेट. जो सेंट्रल का RTI एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका आप एक एक लाइन याद कर लीजिए. एक एक लाइन, सेक्शन नंबर भी याद कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ मिलेगा आपको? मैं चारों चीजें भी दिखा दूंगा कहाँ मिलेगा. बड़ा ही आसान. दूसरी बात, RTI एक्ट के पहले एक एक्ट होता है, फिर एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं. RTI एक्ट के सारे रूल्स भी पढ़ लीजिए. आई थिंक 3-4 पन्ने का होगा वो रूल्स जितने भी हैं. So these rules are done by what? I think DOPT does them. सो DOPT की वेबसाइट पे जाके ये सारे रूल भी आप अच्छे से कर लीजिए. RTI एक्ट, RTI रूल. नंबर 3, अमेंडमेंट.
आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट, आरटीआई एक्ट कब बना था? 2005 में। इसका अमेंडमेंट कब हुआ है? 2 बार हुआ है, एक बार 2019 में, एक बार 2020 में। ये दोनों अमेंडमेंट में क्या क्या चेंज हुआ ये भी पढ़ लीजिए। फाइनल, फोर्थ एंड फाइनल थिंग, एक बार सीआईसी की वेबसाइट पे जाके भी आप एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा कि क्या क्या है, कोई इंपॉर्टेंट वहां जजमेंट्स लिखी हो सुप्रीम कोर्ट की 2-4, वो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इतना कर लोगे, यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से यू कैन गेट एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। सो आरटीआई एक्ट पे जाने के लिए आप यू जस्ट टाइप, यू जस्ट गूगल आरटीआई एक्ट 2005 और जो भी पहला लिंक आएगा, ये आरटीआई एक्ट दिया हुआ है लेफ्ट में, इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन, और ये 2020 का अमेंडमेंट दिया हुआ है। 2019 का अमेंडमेंट भी गूगल कर लीजिएगा। उसमें क्या हुआ था कि कुछ टर्म्स ऑफ ऑफिस और सैलरी में कुछ चेंज हुआ था फॉर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो वो क्या चेंज हुआ था वो वाला आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एनीवे हमने आपको जो चैप्टर दिया है पॉलिटी की बुक में आरटीआई का, दैट शुड बी गुड है। उसमें हमने अमेंडमेंट वगैरह सब लिख दिया है। एक अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, उसमें कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुए हैं कि जहां आरटीआई नहीं लगता है सेकंड शेड्यूल में, जैसे डीआरडीओ, एफआईयू, वो सब भी देख लीजिएगा। 4-5 वो लोग नए आए हैं। तो आरटीआई एक्ट हो गया है, आरटीआई अमेंडमेंट हो गया। अगली चीज क्या है? आरटीआई के रूल्स अंडर आरटीआई एक्ट। रूल आपको कहाँ मिलेंगे? सीआईसी, अगेन सीआईसी की वेबसाइट पे चले जाइएगा। सीआईसी क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और उस पर यहाँ लिखा हुआ है 2012 रूल्स। एक बार ये रूल भी आप लोग देख लीजिएगा आपके सामने। फाइनली सीआईसी की वेबसाइट पे जाके एक बार जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स की एक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्ट आपको देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लीजिएगा, और ये एनुअल रिपोर्ट ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर कोई कमेटी बनी है तो एक बार आरटीआई के ऊपर, मुझे नहीं लगता कुछ विशेष कमेटी कोई बनी है अभी तक किसी नाम से, तो यू कैन इग्नोर दैट, या यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है। सो दिस इज ऑल। ये सब जरूरत नहीं है कि कौन चीफ कमिश्नर है कौन, ये सब याद करने का आपको नीड नहीं है। दिस शुड टेक केयर ऑफ योर आरटीआई। And if you want to understand how we are helping you to prepare for UPSC ESIC exam, the plan is given in front of you. It's a 4-step plan. You can connect with us through any of these methods. We also have given a link in the description below. With that link, you can connect with our team through WhatsApp. तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिया हुआ है। लिंक नंबर 1, उसमें आपको ESIC के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इट्स अ 4-स्टेप प्लान एक्सप्लेन किया ऑन दैट लिंक। एक दूसरा लिंक दिया है, उससे आप क्लिक करके व्हाट्सएप से डायरेक्टली कनेक्ट हमारी टीम से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप मोबाइल फोन से हमसे जुड़े हैं तो, अदरवाइज अगर आप ये सब एक डेस्कटॉप या लैपटॉप से देख रहे हैं तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस से जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन आल्सो ईमेल अस, यू कैन आल्सो कॉल अस। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।